مسیح میں میری طرف سے تمام بہن بھائیوں کو سلام۔ کل ہم نے مسیح کے جو کلمات ہم ان پر غور کر رہے ہیں، جو صلیب پر انہوں نے 7 کلمات بولے تھے۔ 2 کلمات پر ہم ذکر کر چکے ہیں اور آج ہم تیسرا کلمہ جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلا اس پر غور کریں گے۔ یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ شریعت کی تکمیل ہے، اور یہاں پر یسوع المسیح کی ماں کے بارے میں تھوڑا سا میں بیان کروں گی کہ انہوں نے کتنے زیادہ ماں ہونے کی حیثیت سے دکھ اٹھایا۔ یسوع المسیح کی ماں نے خدا کے کلام کو پورا کرنے اور اس کے حکم کی بجاوری کے لیے جسمانی اور روحانی طور پر بڑی اذیت برداشت کی تھی۔ فرشتہ کے فرمان کے مطابق روح القدس کے وسیلہ سے یسوع المسیح کی مقدسہ مریم کے بطن سے بے پدر پیدائش یہ ان کا ناقابل معافی جرم تھا، جس کی یہودی شریعت کے مطابق ایک ہی سزا تھی، یعنی کہ ایسی عورت کو سنسار کیا جائے۔ اسی لیے یوسف نے جو اس کا مگیتر تھا اپنے مگیتر مریم کو چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، لیکن خدا کے فرشتہ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا۔ انجیل مقدس میں یہ سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی پریشانی کی حالت میں ہونے کے باوجود بڑی دلیری اور کامل یقین اور ایمان کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کیا۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے جس طرح یہودی سرداروں اور کاہنوں نے پھر ان کے پیادوں نے اس کے ساتھ ذلت امیز شرمناک سلوک کیا، اس کو مارا گیا، منہ پہ تھوکا گیا، توہین آمیز کلمات کہے گئے، اور پھر پیلاطوس کے حوالہ کیا گیا۔ اسے کوڑوں سے پیٹا گیا، سر پہ کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، صلیب پر مصلوب کیا گیا، ہاتھوں پیروں میں کیل ٹھوکے گئے، پسلی میں نیزہ مارا گیا۔ یہ سب کچھ مقدسہ مریم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب صلیب کے نیچے کھڑی اپنے اس بیٹے کو، جس کے بارے میں فرشتہ نے اس سے کہا تھا کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہ لوکا پہلا باب 32 آیت جو ابھی میں نے پڑھی ہے۔ اب وہ ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں لا رہی ہے کہ میرے ساتھ تو فرشتہ نے اس طرح کا وعدہ کیا تھا، اس طرح کی برکت دی تھی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر اس کی باتیں اور معجزات، مردوں کا جلانا، کوڑیوں کا پاک صاف کیا جانا، اندھوں کی آنکھیں کھولنا، مفلوجوں کو اٹھا کر کھڑا کرنا، 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کے ساتھ ہزاروں کے مجمع کو سیر کرنا۔ اب اس کی آنکھیں یعنی مقدسہ مریم کی آنکھیں مسیحا کی بے بسی لاچاری کی حالت کو دیکھ کر ایک ماں کی حیثیت سے وہ کتنی دکھی تھی، اور مسیحا اپنی ماں کی اس پریشانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی ماں کو تسلی اور اطمینان کی ضرورت تھی، اور یہ صرف اس کا بیٹا ایسی تسلی اور عزت دے سکتا تھا۔ پھر ایک فرمانبردار بیٹے کی طرح شریعت کے حکم کی تعمیل بھی ضروری تھی، یعنی کہ 5واں حکم اگر ہم دیکھیں، جو 10 حکم دیے گئے ان میں جو 5واں حکم تھا وہ یہ تھا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ اس حکم کو مسیحا نے اپنی زندگی میں پورا کیا۔ مسیحا جانتے تھے کہ اب میں رخصت ہو کر اپنے باپ کے پاس جا رہا ہوں، اور میری ماں جسمانی طور پر میری جدائی کو محسوس کرے گی، اس لیے اس نے اپنی ماں کی تسلی اور خوشنودی کے لیے اپنی ماں کو اپنے عزیز ترین شاگرد کے سپرد کیا، اور فرمایا، اور صلیب پر فرمایا۔ یہ تیسرا کلمہ ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگی ہوں کہ آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہ یسوع مسیح کے منہ سے صلیب پر نکلنے والا تیسرا کلمہ تھا۔ اس نے خدا کے اس حکم کو پورا کیا جہاں فرمایا گیا تھا 5واں حکم جو ابھی میں نے آپ سے شیئر کیا کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ تو یسوع مسیح نے اس حکم کو کیا کیا؟ اپنی زندگی میں پورا کیا۔
इसी तरह हम पर भी, हम जो मसीही हैं, हम पर भी मसीही होते हुए ये लाजिम है कि अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करें और इनकी फर्माबरदारी करें ताकि हमारा भला हो। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। और ये जो आयत है ये इफ्सियों छठा बाब पहली 2 आयात में लिखा हुआ है कि आए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त का ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। वादा क्या है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। अभी कुछ हवालाजात हैं जो हम देखेंगे बच्चों के लिए कि उन्होंने किस तरह से अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करनी है। और यीशु अल मसीह ने यहूदियों को जताया था, उनको याद दिलाया था। कुछ हवालाजात हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है मत्ती उसका 15वां बाब, मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी हम आयत नंबर देखेंगे 3 से 6 आयत। मत्ती की अंजील 15वां बाब। अब यहाँ पर यीशु मसीह जो हैं वो यहूदियों को कुछ याद दिला रहे हैं इसी हवाले से। जब वो खिदमत में थे, मुनादी में थे, उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो? क्योंकि खुदा ने फरमाया कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, और जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे कि जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुँच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। अब यहाँ पर यीशु मसीह अपनी ज़िंदगी में उनको ये जता रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो फरीसी और फ़कीह थे उन्होंने यीशु के पास आकर ये कहा था कि तेरे शागिर्द बुज़ुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं। और रवायत क्या थी कि खाना खाते वक्त ये हाथ नहीं धोते। तो फिर यीशु मसीह उस वक़्त उनको ये बता रहा है कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि कलाम में तो ये लिखा है कि अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, और तुम अपने माँ बाप से कहते कि जो चीज़ हमने तुम्हें देनी थी वो हमने खुदा को दे दी। यानी कि वो अपनी इस रवायत से उन्होंने खुदा के कलाम को क्या कर दिया? बातिल कर दिया। इसके साथ हम देखेंगे एक और हवाला, ये है इस्तिस्ना उसका 21 बाब और उसकी हम देखेंगे 18 से 21 आयत तक। और ये जो हवालाजात हैं इनसे हम मज़ीद इन हुक्मों को समझ सकते हैं कि किस तौर से ये जो खुदा ने ये कलमे को सीख सकते हैं कि खुदा ने ये जो कलमे सलीब पर फरमाए थे ये पहले खुदा ने इन पर खुद अमल किया था, क्योंकि वो बाअमल उस्ताद थे। अब यहाँ पर नाफरमान बेटे के बारे में ज़िक्र है। अगर किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने बाप या माँ की बात ना मानता हो और उनकी तंबीह करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसको पकड़ कर निकाल कर उस शहर के बुज़ुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं, और वो उस शहर के बुज़ुर्गों से अर्ज़ करे कि ये हमारा बेटा ज़िद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता, अड़ऊ और शराबी है। तब उस शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूँ तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इसराइली सुनकर डर जाएंगे। अब यानी कि खुदा के हुक्मों की पैरवी करना, और ये बहुत सख्ती से खुदा ने फरमाया था कि अगर कोई नाफरमान बेटा हो जो यानी कि 5वें हुक्म को तोड़ता हो, 5वें हुक्म को पर अमल ना करता हो, तो उसके लिए क्या सज़ा थी कि उसके वालिदैन जो थे वो अपने बेटे को क्या करें? पहले वो खुद तंबीह करें, लेकिन जब वो ना अपने माँ बाप की सुनता हो तो फिर वो उस शहर के बुज़ुर्गों के पास लेके जाएं, और वो क्या करें? वो
उस बुज़ुर्ग और शहर के सब लोग उसको संसार करें कि वो क्या हो जाए, वो मर जाए, यानी कि ये बुराई जो है ये वहाँ से ख़त्म हो जाए। और लिखा हुआ है कि तब जो दूसरे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो डर जाएंगे और वो क्या करेंगे, इस हुक्म को फिर अपनी ज़िंदगी में पूरा करेंगे। हम एक और हवाला देखेंगे, यहाँ पर भी ज़िक्र है इमसाल उसका 23वां बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि अपने माँ बाप को खुश कर, अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। यानी कि ये खुदा का हुक्म है, खुदा का कलाम है जो हमने अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। और यीशु मसीह भी इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसीलिए उसने जब वो अपने बाप के पास जा रहा था रुखसत होकर दुनिया से, तो उसको अपनी माँ की फ़िक्र थी और इसलिए उसने अपने अजीज़ तरीन शागिर्द जिस पर उसको इत्मीनान था कि ये मेरी माँ की क्या कर सकता है, ये केयर कर सकता है, तो वो उसको उसके सपोर्ट करता है अपनी माँ को। इस तरह से हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में किस तरह से और भी बड़ी वजाहत से बयान किया गया है कि हमने किस तौर से इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में पूरा करना है। हम देखेंगे तीमुथियुस में, पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब, पहला तीमुथियुस उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत पर हम गौर करेंगे। यहाँ पर भी जिक्र है, और अगर किसी बेवा के बेटे या पोते हों तो वो पहले अपने ही घराने के साथ दीनदारी का बर्ताव करना और माँ बाप का हक अदा करना सीखे, क्योंकि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। अगर हम अपने माँ बाप की केयर करते हैं, उनकी फर्माबरदारी करते हैं, तो ये यहाँ लिखा हुआ है तीमुथियुस में कि ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। और खुदा ने इसीलिए तो इस कलाम में, इस हुक्म में ये वादा किया है कि क्या होगा, तेरा भला होगा। खुदा ने ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अगर हम फर्माबरदारी करते हैं तो खुदा क्या करता है, फिर हमारा भला करता है। और जो बच्चे अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं उनका भला होता है और उम्र भी ज़मीन पर क्या होती है, दराज होती है। ये इफ्सियों 6 बाब पहली 2 आयत हैं, इसमें जिक्र किया गया है कि आए फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त का। ये पहला हुक्म है जिसके साथ क्या है, वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। तो हम देखते हैं इस कलमे में यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया था और अपनी माँ की क्या की थी, उसने मुकम्मल हम देखते हैं कि जब वो ज़मीन पर था तब भी वो अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहा, उनके ताबे रहा, और जब वो मरने को था तब भी उसने अपने माँ की फ़िक्र की। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और ज़रूरी है कि हम भी अपने मसीहा के इन निकले हुए कलमों को अपनी ज़िंदगी में ले लें। खुदावंद आप सबको बरकत दे।